again in my YouTube channel अर्ज क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज आई अजय कुमार मिश्रा स्टार्ट स्टैंडर्ड क्लास 7th and the name of the chapter is reproduction in plants. Reproduction in plants. My dear students, आज आपके लिए मैं 7th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए और इस क्लास का आनंद उठाएंगे हम लोग। बी सिंसियर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन इट इज ए प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वंस देयर ओन काइंड सेम काइंड। वो अपने समान ही अपने संतान की जो उत्पत्ति करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो क्लास है 7th स्टैंडर्ड में, वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। तो प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म which can respire, grow, reproduce, move and etc. so many characteristics, and in these characteristics one is that reproduction. So now my dear students, we will study about the reproduction in plant. So first of all we will write the definition of reproduction. Write down the process reproduction. Reproduction. So what is the reproduction? My dear students, write down the process by which living organism can produce of their own kind, or you can say same kind of own kind before they die. मरने के पहले वो अपने समान ही अपनी संतान की जो प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो इट इज ए प्रोसेस। नाउ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये रिप्रोडक्शन इट मीन सेम काइंड प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट इज आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड। इट मीन्स इफ वी sow the seed of paddy, it will grow the paddy, no wheat, no gram. If we plant the tree of mango, it will grow, it will produce, it will give the fruits of mango, not apple, not orange. So this is the here the meaning of सेम काइंड और ओन काइंड। ओन काइंड का मतलब वो अपने समान ही करेगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। तो नाउ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।
तो प्लांट ऑलवेज फॉलो द बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड types of reproduction. Types of reproduction. You will write here there are two types of reproduction. There are two types of reproduction. First, sexual reproduction, or second is asexual reproduction. So what do you understand about the sexual and asexual? Sexual it means होता है in this process, in this reproduction, two individuals are required. What do you understand about the two individuals? टू इंडिविजुअल्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, बोथ आर रिक्वायर्ड. दोनों जब होंगे तब वो प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइज करेगा और नाउ देन इट प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो नीड टू रिक्वायर्ड two individuals, only one single ही क्या करेगा, just it will go through the different process and it will reproduce. After processing different process it will produce. So how? Now just I will explain it one by one. First of all you will write down, and now just I am going to explain first sexual and asexual reproduction. Then in the chapter reproduction in plant, asexual, what is the asexual reproduction and what is the process? Now we will discuss about the sexual reproduction and what is the process of sexual reproduction. Come to the point. Asexual reproduction. Asexual reproduction, my dear friends, you will write the reproduction and individual, reproduction and individual, and individual can reproduce on its own without individual of the same species, without involvement of own without involvement of other, OTHER, other individual of the same species. Without individual of the same species. मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप,
रिप्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यहाँ पर सेंस है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का। मेल और फीमेल को एक अलग अलग हम इंडिविजुअल के सेंस में बोलते हैं। टू इंडिविजुअल्स का मतलब मेल और फीमेल, और सिंगल इंडिविजुअल्स करने का मतलब होता है आइदर मेल और फीमेल। तो यहाँ मेल और फीमेल को हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। तो नाउ प्रोडक्शन कैन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। उसी स्पीसीज का दूसरे जो पार्ट है जो इंडिविजुअल से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का होता है, एक होता है मेरा रिप्रोडक्शन प्लांट में, एक स्पोर फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है मेरा। और वो रिप्रोडक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस प्लांट में भी दो तरह का रिप्रोडक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लांट्स में दो तरह का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अभी हम लोग पहले बात कर रहे हैं सेक्सुअल का, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल में केवल सिंगल इंडिविजुअल रिक्वायर्ड था। यहां लिखेंगे इन सच प्रोसेस, इन सच रिप्रोडक्शन, सच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन टू इंडिविजुअल्स of the same species are required, called sexual reproduction। इसमें टू इंडिविजुअल्स, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्टिसिपेट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जब प्रोडक्शन होगा तब उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन का केसेस दो है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रूट, स्टेम और लीव्स ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। और एक होता है मेरा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, तो ये दो तरह से इसमें क्या होता है मेरा रिप्रोडक्शन का केस होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the individual can reproduce
on its own without the involvement of another individual of the same species. Now the division of the bacterial cells, it means cell division, reproduction, asexual reproduction is not however limited to the single cord organism. Most plants have the ability to reproduce asexually. It means asexual reproduction takes place in different organisms like budding, fragmentation, spore formation, and now vegetative reproduction. And vegetative reproduction यूनिसेलुलर में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड करके डिवीजन मेथड, डिवीजन प्रोसेस से वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन का काम करता है. दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें प्लांट का स्टेम, रूट और लिव्स पार्टिसिपेट करता है. तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों वन बाय वन. Asexual reproduction in plant. Asexual reproduction in plant. अब asexual reproduction in plant, तो इसका दो, एक होता है मेरा सिंगल सेल, वो डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और ए ब्रेकिंग. तो asexual reproduction in plant, तो पहला क्या है मेरा, पहला आपका बडिंग ले लें, BUDD बडिंग. दूसरा जो होगा आपका फ्रैगमेंटेशन, FRAGMENTATION. तीसरा स्पोर फॉर्मेशंस, स्पोर फॉर्मेशन. और चौथा होता है मेरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, VEGETATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वन बाय वन दीज आर ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप्स मेरे प्यारे बच्चों. यहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो किस पार्ट में होता है, तो फ्लावर्स में होता है. क्योंकि फ्लावर्स में दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, स्टेमेन और पिस्टिल होता है. तो स्टेमेन आपका जो पार्ट है मेल पार्ट, और पिस्टिल मेरा क्या होता है, मेरा फीमेल पार्ट. इट मीन्स ओवरी होता है, एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है. These are complete. It shows the male and female part, and so in this process, it means in the flower of the plant, it shows the sexual reproduction. We will discuss about the asexual part, and then we will discuss about the sexual reproduction of in a plant, my dear friends. So come to the point. Budding. What is the case of budding? Budding क्या है मेरे प्यारे बच्चों? What is budding? Budding क्या होता है? Now budding क्या होता है? ईस्ट ले लेंगे. ईस्ट वो ये है न्यूक्लियस. ईस्ट सेल यूनिसेलुलर होता है. तो ईस्ट सेल क्या करता है? बडिंग फॉर्मेशन करता है, बड बनाता है. तो ईस्ट में क्या करेगा? बड का फॉर्मेशन करता है. इट मींस आउट ग्रोथ. व्हाट इज द बड? आउट ग्रोथ प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बड. आउट ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आउट ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आउट ग्रोथ प्रोडक्शन
of an organism is called bud, and this process is called budding. The outgrowth process, outgrowth production of an organism is called bud. तो ये देखिए आपका ईस्ट है फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या करता है, चूंकि ये यूनिसोलर रहा है और इसमें क्या होता है, बडिंग फॉर्मेशन होता है, तो ये बड बनाता है। तो बड क्या करेगा, ये नेक्स्ट इसका ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का होता है डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाएगा मेरा, दिस इज नोन एज पैरेंट सेल। इसको आप बोलेंगे पैरेंट सेल। पैरेंट सेल है और पैरेंट सेल क्या करता है, ये आउटग्रोथ करेगा। तो आउटग्रोथ करेगा तो कैसा बनेगा, ये देखिए न्यूक्लियस है, सेकेंड फेज में किया गया, ये आउटग्रोथ बना इसका, मतलब ये अपने बॉडी को आगे की ओर निकाला, आउटग्रोथ किया। तो ये क्या आता है, फाउंडेशन ऑफ बड। इसको बोलेंगे फाउंडेशन ऑफ बड। ये बड बनाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। दिस इज द बड। अब ये बड क्या हुआ, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गई, इधर भी हो गया। अब नाउ थर्ड फेज में क्या करेगा, तो थर्ड फेज में ये सेकेंड फेज बोलेंगे इसको। थर्ड फेज में ये क्या होगा आपका, थर्ड फेज में ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और दोनों अलग अलग हो गया। ये थर्ड फेज है आपका। तो थर्ड फेज में क्या बन गया आपका, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नाउ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और फोर्थ फेज में इसने क्या किया, फोर्थ फेज में ये पेरेंट सेल से अलग हो गया और दो नए सेल का फॉर्मेशन किया। दिस इज द सेल डिवीजन प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन प्रोसेस। और ये ईस्ट का, ये ईस्ट, दो ईस्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये क्या हो गया, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। पेरेंट सेल से दो डॉटर, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो जो प्रोडक्शन के बाद आता है दैट इज नोन एज डॉटर सेल। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डॉटर सेल बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो आइए इसको लिखते हैं, व्हाट इज द बडिंग। बडिंग आपको हम लिखवा देता हूं, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अभी आपको मैंने बताया व्हाट इज बड। बड क्या होता है, जब आउटग्रोथ होता है तो आउटग्रोथ के बाद ये क्या करता है, पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लें, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग, लिखिए। आउटग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ बडिंग, it is the process, it is the process where outgrowth of, where outgrowth of an organism is called budding. Is called budding. Their nucleus is divided here. Nucleus is divided into two daughter cells, into two daughter cells, or you can say nuclei, nuclei, nuclei. Now and other growth is detected from the parent cell, and after that
daughter cells after that daughter cells detected from the parent cell, from the parent cell, और लास्ट पेरेंट सेल से वो क्या होता है, डिटेक्ट कर देता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग. मैंने फिगर अभी आपको लिखा था बेटा, यू विल पुट डाउन द फिगर हियर. आप यहां पर फिगर डाल दीजिए बडिंग का. एंड एग्जांपल ईस्ट होगा. नाउ नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन. ये पहला था बडिंग, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION, fragmentation. Now my dear students, first of all you will write down, and after that with the help of diagram I will explain it and try to understand. Now come to the point, fragmentation. What is the fragmentation? What is the fragmentation? Frangilla होता क्या है? Thread like structure, that is a frangilla. My dear students, you have already seen the algae पॉन्ड में या स्टेगनेंट वाटर में आपने देखा कि ग्रीन ग्रीन कलर का, जिसको आप एल्गी बोलते, जिसे मैं एल्गी बोलता हूं, काई बोलते हैं आप, वो रहता है. व्हेन यू विल गो थ्रू द, यू विल पुट आउट द फ्रॉम द हेल्प ऑफ अ स्टिक, जस्ट you will see the thread like a structure, that is a that is called a sporangia fragment, that is known as fragment, and it will break down and make a new individuals, and this process is known as fragmentation. Come to the point. देखिए यहाँ पर क्या होता है. Long fine green thread, long fine green, long fine green thread like a structure, thread like a structure, THREAD, thread like a structure. Now long fine green thread like a structure present in a pond, present in a pond, in a pond or a stagnant water, STAGNANT, STAGNANT, stagnant water मतलब जो पानी कहीं इकट्ठे में जमा हुआ रहता है, and such types of water is known as a stagnant water. उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? stagnant water बोलते हैं. Now a stagnant water, a stagnant water called algae, called algae, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? algae बोलते हैं, ALGAE, algae. And now such algae, one algae is called the sporangia. One algae is called a spirogyra. Is called a spirogyra. SPIROGYRA. और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइरोगायरा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों. एक को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइरोगायरा. पूरा वो ग्रीन एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरोगायरा कहलाता है. और जब बहुत सारा मिलता है और मिलकर ग्रीन ग्रीन जैसा रहता है पॉन्ड में, उसको हम लोग कहते हैं एल्गी बोलते हैं. तो वन thread like a structure present in a pond or a stagnant water called the algae, and such one algae is called a spirogyra. और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? जब आप उठाएंगे उसे धागे लकड़ी कोई से या स्टिक से, तो देखेंगे कि धागे की तरह एक लटका, that is called a spirogyra. इसको हम क्या बोलते हैं? a spirogyra. and it will broken down, ये क्या होगा? टूट करके और फिर एक नया एल्गी का फॉर्मेशन करेगा, स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करेगा. और ये टूटना ही फिलामेंट, इसको एक थ्रेड को जो है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और टूट करके दूसरा बना देता है. दैट इज फ्रेगमेंटेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे. अभी मैं दिखाता हूँ वाइट डायग्राम से मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए.
Now, Spirogyra, as they have a spores called a Spirogyra, as they have a spores, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? As they have fragmentation, now called algae, and one such called a spirogyra, it produces by the breaking, no sorry, it produces by the broken down filament into broken down the filament into two or more fragments, fragments, more fragments, and which grow up as a new plant, वो न्यू प्लांट की फॉर्म में ग्रो करता है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। देखिए कैसे होता है। फर्स्ट फेज, ऐसा डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये आपका ऐसा बना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट फेज में है। जब उसको हम तो उठाएंगे तो ये इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा। नाउ सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज में ये ये देखिए बीच में ब्रोकन पार्ट, ये सिंगल फेज सेकेंड फेज में। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ? ये एक स्पाइरोगाइरा है, दैट इज फिलामेंट, वन स्पाइरोगाइरा, दैट इज ये पूरा एल्गी बहुत सारा ग्रीन है, और उसमें एक जो है आपका दैट इज फ्रैगमेंट, एक फ्रैगमेंट बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट, FRAGMENT। और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। और ये फिलामेंट ब्रोकन डाउन हो, यहां पर टूट गया, और टूट करके दो फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन, एक फ्रैगमेंट कहलाएगा फ्रैगमेंट, और ये दूसरा फ्रैगमेंट कहलाएगा FRAGMENT। तो दो फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ दिस इज द पेरेंट सेल, इसको आप पेरेंट सेल बोलेंगे। और ये दो बन गया, वन और टू, दैट इज डॉटर सेल। इट मींस एक एल्गी जो है दो और दो से ज्यादा एल्गी का फॉर्मेशन करते जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैगमेंटेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड, आई हैव कॉन्फिडेंट you will understand clearly, you have already understood very clearly. Now my dear students, please come to the next point, that is called a spore formation. अब बात करें हम लोग क्या, और दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, टू इंडिविजुअल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ थर्ड, तो थर्ड में आता है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड होता है मेरा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन।
SPORE, स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन, तो व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो आप लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉटनी ग्रोथ, COTTONY, कॉटनी ग्रोथ, GROWTH, कॉटनी ग्रोथ ऑफ a stale food, कॉटनी ग्रोथ ऑफ a stale food or a spoiled food, or SPOIL, spoiled food, courtney growth of a stale food or a spoiled food, a stuff such food, a stuff, STUFF, such courtney growth to form into such courtney, COTTONY, courtney growth to form, courtney growth to form into minute pinhead, to form into minute pinhead like a structure, pinhead like a structure, pinhead like a structure of bread mold, BREAD mold, bread mold, called sporangia, sporangia, sporangia बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, called sporangia, sporangia बोलते हैं इसको, called sporangia, and as they have a spore, a spore, कैसा होता है? स्पोर की तरह होता है, लंबे धागे की तरह, as they have spore in them, and it breaks down, and it break in them, it is thick, it is thick walled, microscopic, which carried by wind, जो विंड के द्वारा कैरी किया था, carried by wind, and they germinate after getting the suitable environment or suitable medium। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका एग्जाम्पल फर्न्स हो जाएगा, मोसेस हो जाएगा, FERNS, फर्न्स, मोसेस, MOSSES, मोसेस। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन का फिगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, स्पोर फॉर्मेशन, कॉटनी ग्रोथ ऑफ द स्टेल फूड। स्टेल फूड का मतलब जो खाना खराब हो गया है, या जो खाना ऐसा है सड़ गया है, तो उसमें आप देखेंगे व्हाइट सब्सटेंसेस हो जाता है,
तो व्हाइट सबस्टांसेस की क्या मेरा स्पोर्स है, स्पॉइल्ड फूड स्टफ सच कॉटनी मतलब उजला ग्रोथ टू फॉर्म इनटू द माइन्यूट पिन हेड। अब वो आगे क्या होता है, पिन हेड की तरह बनाता है ऊपर, और वो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड मोल्ड कॉल्ड स्पाइरोगाइडा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। वो स्पोरेंजिया बाद में क्या करता है, टूट जाता है, मिल जाता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये ठीक वर्ल्ड माइक्रोस्कोपिक होता है, जो कैरिड किया जाता है किसके द्वारा, विंड के थ्रू और हवा मॉइस्चर के कारण। जब भी फूड स्टेल करता है तो क्या करता है, वो स्टेलिंग जो होता है फूड का, वो किसके कारण होता है, तो मॉइस्ट के कारण, और वो फिर जाकर के ब्रेड में या फिर फूड पे अटैक करता है और उसको खराब कर देता है, स्पोर्स बनाता है, और वो स्पोर्स इतना सारा बन जाता है कि पूरे फूड को स्टेल कर देता है, स्पॉइल कर देता है। एंड ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन है, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो आइए इसका फिगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका फिगर देखेंगे हम लोग। देखिए ये ब्रेड है आपका, ये ब्रेड है, स्लाइस ब्रेड। नाउ ब्रेड क्या किया, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये फॉर्मेशन हुआ, इसी को बोलते हैं मोल्ड या मोसेस बोलते हैं। यही मेरा क्या है, मोल्ड या मोसेस। और ये आगे डेवलप करते चला जाता है, तो ये टूटता है आपस में। बनता कैसे है, तो देखिए ये इसको ऐसे ऐसे आप ले लें, रूट्स का काम करेगा ये। अब ये जो है ये कॉटनी ग्रोथ है, और एक कॉटनी में क्या किया मेरा, स्पोरेंजिया स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। और ये स्पोर्स क्या किया मेरा, ये स्पोर्स बना रहा है। और नाउ ये स्पोर्स क्या करता है मेरा, दैट इज स्पोर्स। स्पोरेंजिया मतलब बहुत सारा स्पोर्स बनाता है, और एक को बोलता है स्पोरेंजियम, और बहुत सारा स्पोर्स को स्पोरेंजिया बोलते हैं। और ये स्पोर्स ब्रोकन डाउन होता है, ठीक होता है। ये कॉटनी ग्रोथ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, खत्म हो जाता है, और फिर टूट करके क्या बनाता है, दूसरा स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। और इस तरह से पूरा फूड को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, स्टेल कर देता है, और पूरे में व्हाइट कॉटनी सबस्टांसेस की तरह फैल जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। तो दीज आर द रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन द प्लांट एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में हमने देखा क्या, बडिंग देखा। दूसरा क्या देखा हमने, दूसरा में हम लोग देखा फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है मेरा, स्पोर फॉर्मेशन। और जो फोर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, VEGETATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला रूट में होगा, रूट का पार्ट, दूसरा स्टेम का पार्ट, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, लीव्स का पार्ट। ये तीनों पार्ट से फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन का केस होता है। तो रूट क्या होता है, रूट से दूसरे रूट से वो का प्लांट का ग्रो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 केस होते हैं, मतलब वो प्लांट का रूट का पार्ट, स्टेम का पार्ट और लीव्स का पार्ट, इस पार्ट से जो रिप्रोडक्शन का केस होता है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, now vegetative reproduction, it's also a very important plants reproductions, very important part. And now the time has too much,
Now I would like to stop here so that you can understand, and in my next part I will give you the details knowledge of vegetative reproduction in plant. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो I request all of you, please never forget to subscribe my channel and spread among the all students so that they can also enjoy my class. Thank you for today's